Friends, I am going to talk about a reaction which is called alkylation. Alkylation is a simple reaction in which an alkyl group is introduced into an aromatic ring by replacement of hydrogen atom. So the total name of this alkylation reaction is Friedel-Crafts alkylation. Friedel and Crafts, these are the two scientists. Full name of Friedel is Charles Friedel, name of discoverer. James Mason Craft, the name of discoverer. इन दोनों ने मिलकर के अल्काइलेशन रिएक्शन की डिस्कवरी किया था, इसलिए इनके नाम पर इसका नाम रखा गया फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन. तो रिएक्शन इज वेरी सिंपल. इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप in benzene ring by replacement of hydrogen atom in presence of anhydrous aluminum chloride. Aluminum chloride is called as alkylation. But this reaction has been discovered by Charles Friedel. Charles Friedel and James Mason Crafts. Hence, it is named as Friedel-Crafts alkylation. Hence, this reaction is named as Friedel-Crafts alkylation. Friedel is surname, title of one scientist, and Crafts is the title of one scientist. So collectively it is called as Friedel-Crafts alkylation. They have also discovered about the acylation reactions. But it is not my object for today. Only I have concentrated only on the alkylation reaction. Now see these examples. For examples, benzene, hydrogen
is reacted with alkyl halide, or X in presence of anhydrous AlCl3. This goes out the Cl and we get the alkylated benzene plus CHX. This is alkyl benzene. RX may be, RX it is alkyl halide, may be 1 degree, 2 degree or 3 degree. This benzene may be replaced by other aromatic compound, but I am only concentrated with the example of benzene. So this is the reaction. AlCl3 acts as catalyst. AlCl3 acts as catalyst. So this is the general reaction of Friedel-Crafts alkylation. Now see the particular examples, specific examples, because these examples are very important with examination point of view. Particular examples are benzene is common to all, anhydrous ammonium chloride is common to all. This is benzene, say it is CH3Cl, AlCl3, anhydrous product is methyl benzene, methyl benzene plus HCl. This methyl benzene is named commonly toluene. Other example is say it is ethyl chloride, AlCl3, anhydrous product is ethyl benzene, plus HCl. The other example is this is 1 degree alkyl halide, this is again 1 degree alkyl halide. If you take the 1 degree alkyl halide with 3 carbon atom, this is N propyl chloride, AlCl3 anhydrous. अब 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड यहाँ भी है, कोई चेंज नहीं होगा। यह भी 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है, लेकिन इसके पास नंबर ऑफ, इसमें एक सेकेंडरी कार्बन भी है, 2 तरह के कार्बन एटम इसमें है, प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है। इसलिए यह जो कार्बोकेटायन से जनरेट होता है वो रीअरेंज करता है और प्रोडक्ट, मेजर जो प्रोडक्ट बनाता है वो रीअरेंज होकर के बनाता है। ये आपका CH3 इसको क्यूमीन कहते हैं। क्यूमीन ये मेजर बनता है
और नॉर्मल प्रोपाइल भी माइनर बनता है प्लस HCl। तो माइनर का मैं उल्लेख नहीं करता हूँ। आपने देखा कि हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन के से लगा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है, लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है तब इसका जो लिंक बनता है वो सेकेंडरी कार्बन से हो जाता है। ये सेकेंडरी कार्बन से ये तो बेंजीन रिंग लिंक होती है। तो यहाँ पर ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। दिस इज rearrangement reaction. This is rearrangement reaction. आप जानते हैं कि जहाँ कहीं भी कार्बोकेटाइन बनता है और उस कार्बोकेटाइन में मोर देन 1 टाइप के कार्बन एटम होते हैं तो रीअरेंज करने की उसकी टेंडेंसी होती है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री में बदल जाता है, अगर 2 डिग्री का बना हुआ है तो 3 डिग्री में बदल जाता है। तो इसका हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो यह रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल है। इसमें यह क्यूमीन बनता है, यह आइसोप्रोपाइल, जिसका नाम और भी है आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन रीअरेंजमेंट का एक एग्जाम्पल और मैं देता हूं आपको। नीचे ये है CH3 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 CH2Cl है, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है, सॉरी नियोपेंटाइल क्लोराइड। ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, सॉरी एल्युमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस। तो ये भी रीअरेंज प्रोडक्ट बनाता है। देखिए इसमें ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, 2 तरह के कार्बोकेटाइन है, बाहर के कार्बन प्राइमरी हैं, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी कार्बन है, लेकिन सेंट्रल जो कार्बन है वो क्वॉटरनरी है, यानी 2 तरह के इसमें कार्बन है। तो रीअरेंज करता है और यहाँ से प्रोडक्ट बनाता है। तो प्रोडक्ट देखिए, हम किसी भी हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं। ये हो गया CH3, यहाँ से लिंक बन गया, ये 2 CH3 इधर हो जाएंगे, ये इधर शिफ्ट करके चला जाएगा CH2 CH3, ये नीचे हो जाएगा CH3, ये प्रोडक्ट बनता है। इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 एंड 4 नाम हो जाएगा 2 मेथाइल, ये हम पहले आता है। ये फेनाइल है, 2 फेनाइल, 2 मेथाइल, 2 फेनाइल ब्यूटेन, ये हो गया ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया। तो ये अभी जो रिएक्शन हो रहा है नियोपेंटाइल क्लोराइड के साथ, वो रीअरेंज प्रोडक्ट बनाता है। रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। यह रीअरेंजमेंट क्यों होता है? दिस हैपेंस ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। जब मैकेनिज्म बताएंगे तो बताएंगे कि कैसे ये रीअरेंज करता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट कैसे रीअरेंज कर रहा। लेकिन अगर टर्शियरी है, जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अगर हम टर्शियरी लेते हैं CH3 CH3 ये मान ली Cl है, एनहाइड्रस AlCl3 है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। अल्काइलेशन होगा, ब्यूटाइल ग्रुप इंटर करेगा, तो ये ब्यूटाइल ग्रुप इंटर करेगा, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि टर्शियरी कार्बन एटम का रीअरेंजमेंट नहीं होता है।
टर्शियरी कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो इसका नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3, 2 मेथाइल, 2 फेनाइल प्रोपेन। ये रीअरेंज्ड प्रोडक्ट नहीं है, नॉट द रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट, नॉट रीअरेंज प्रोडक्ट, नॉट रीअरेंज द प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपने देखा कि अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है जो बेंजीन रिंग में इंटर कर गया, ये भी अल्काइल ग्रुप है जो बेंजीन रिंग के अंदर इंटर कर जा रहा है। तो अल्काइल ग्रुप का रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करना अल्काइलेशन कहलाता है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय द अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड अल्काइलेशन। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल्स मैं और बताता हूँ जो मॉडिफाइड फॉर्म है इसका, क्योंकि कार्बोकेटायन के थ्रू ये रिएक्शन होता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नोट करना चाहिए स्टूडेंट्स को। दिस रिएक्शन प्रोसीड्स ड्यू टू अटैक ऑफ कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल है, उसका अटैक होता है और इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट भी बनता है। कंफ्यूज स्टेट में छात्रों को नहीं आना चाहिए। तो द रिएक्शन प्रोसेस ड्यू टू अटैक ऑफ कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यह जो कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफाइल है वह साधारण नहीं है, इसको बोलते हैं इनसिपिएंट इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकेटायन बोलते हैं इसको, इनसिपिएंट कार्बोकेटायन बोलते हैं। मैकेनिज्म लिखेंगे तो बता देंगे कि इनसिपिएंट कार्बोकेटायन क्या है, जो क्षणिक बनता है और तुरंत यूज होता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा बता भी देते हैं। मान लिया मेथाइल क्लोराइड ले रहे हैं या इथाइल क्लोराइड ले रहे हैं, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के इंटरेक्शन से बनता है। तो यहाँ पर CH3 हो गया मेथाइल क्लोराइड का। और आप जानते हैं कि मेथाइल क्लोराइड पार्शियल पोलर है और फेरिक क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड ये दिस इज लेविस एसिड है। ये जो इसका एल्युमिनियम है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। 6 इलेक्ट्रॉन ही इसके वैलेंस शेल में है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आइटम है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। होता क्या है कि जब इन दोनों में इंटरेक्शन होता है तो इंटरेक्शन होने से होता क्या है कि ये धीरे धीरे और पोलराइजेशन इसका बढ़ता है। तो ये बनता है CH3 डॉट Cl, फिर डॉट ये आता है Al, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl। ये Cl इसके समीप आने पर पार्शियली निगेटिव हो जाता है, नहीं इसके साथ आने पर पार्शियली निगेटिव हो जाता है। ये दोनों के बीच में अभी लिंक नहीं है, इस रूप में है। अब इसके पास आ रहा है, तो जब आ रहा है इसके साथ एसोसिएशन बना रहा है तो यहाँ से इसका निगेटिव शिफ्ट करके एल्युमिनियम पर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब यह जो सेंटर है ये कार्बोनाइन सेंटर है, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर, यही इलेक्ट्रोफाइल सेंटर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल का सेंटर है। यही अटैक करता है बेंजीन रिंग पर, तो ये टूट जाता है। इसी को कहते हैं इंसिपिएंट, क्षणिक तुरंत बनता है, इंसिपिएंट कार्बोकेटायन। इंसिपिएंट कार्बोकेटायन
हम इसको एक उदाहरण की सहायता से समझा दे रहे हैं, मैकेनिज्म लेकर के एग्जाम्पल के तौर पर। इस तरह के कार्बोकेटाइन को इंसिपिएंट कार्बोकेटाइन कहते हैं, जो तुरंत बनता है और उसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों एक साथ जुड़े होते हैं। ये इसकी ब्यूटी है। एक मैकेनिज्म ऑफ अल्काइलेशन, मैकेनिज्म, एक एग्जाम्पल, इट इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, it involves 3 steps as पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ incipient electrophile, incipient carbocation electrophile, this is attacking reagent, इसका फॉर्मेशन होता है। ये फॉर्मेशन ऑलरेडी मेंशन्ड है, फिर भी सुविधा के लिए मैं यहाँ अलग लिख देता हूँ। CH3Cl प्लस AlCl3 ये फॉर्म करता है CH3 डॉट Cl डॉट Al, Cl3 यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियली निगेटिव, ऐसा। यही आपका इंसिपिएंट कार्बोकेटाइन है। दिस इज इंसिपिएंट कार्बोकेटाइन। अब स्टेप 2 में क्या है? दिस इलेक्ट्रोफाइल, दिस एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, this electrophile attacks on benzene and forms carbocation intermediate which is resonance stabilized, it is slow process, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करता है, इसे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। यह आपका दिस इज बेंजीन, सही है। अब यहाँ पर CH3 डॉट Cl Al Cl ये पार्शियल पॉजिटिव है, दिस इज पार्शियल निगेटिव है। ये पाई इलेक्ट्रॉन ये इस पर अटैक करता है। ऐसा करने से ये यहाँ से इधर निकल जाता है, इससे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, HCH3 प्लस AlCl4 माइनस। ये जो कार्बोकेटाइन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मैं इसे लिख देता हूँ, ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा,
ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा H, और CH3 ऐसा होगा। एक और मैं इधर से बना देता हूँ, ये यहाँ शिफ्ट करेगा। CH3 यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इधर चलता हूँ, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ बना देता हूँ। यहाँ से चल के यहाँ तक आता है पॉजिटिव चार्ज ऐसा, H है CH3। ये यहाँ से यहाँ तक का जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, ये स्लो स्टेप है, इसका फॉर्मेशन स्लो है। दिस इज स्लो स्टेप, दिस इज स्लो स्टेप, hence rate determining step, hence rate determining step, पहला पॉइंट। this is endothermic, this is endothermic conversion, endothermic conversion, endothermic conversion means conversion accompanied by absorption of heat। ये कैसे पता चलेगा कि वह है? ये बेंजीन ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज बेंजीन बीइंग एरोमेटिक, बिकॉज अब इसको बताने के लिए देखिए हम बता देते हैं। यहाँ पर ऊपर लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ बेंजीन कन्वर्ट हो रहा कार्बोकेटाइन में। ये बेंजीन है, इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू कार्बोकेटाइन, दिस इज कार्बोकेटाइन। यह CH3 में कन्वर्ट हुआ है। यह नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। ऊपर लिखता हूँ बेंजीन के लिए देखिए यहाँ ऐसे लिखता हूँ, बेंजीन एरोमेटिक, एरोमेटिक। ये इसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ नॉन एरोमेटिक, एंड इज नॉन एरोमेटिक। जब एरोमेटिक है तो मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। आपको मालूम है कि एरोमेटिक सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होते हैं, नॉन एरोमेटिक है लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा। मोर स्टेबल है इसका मतलब इसके पास लेस एनर्जी है, इसके पास लेस एनर्जी है। इसके पास लेस स्टेबल है तो मोर एनर्जी है, मोर एनर्जी। अब देखिए यह लेस एनर्जी स्पेसीज चेंजेज इनटू this less energy species changing into more energy species। तो कैसे हुआ होगा? गेन ऑफ एनर्जी होगा, गेन ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ एनर्जी। जब गेन ऑफ एनर्जी होगा तो प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा। हेंस कन्वर्जन इज एंडोथर्मिक, हेंस कन्वर्जन इज एंडोथर्मिक। फिर रिपीट कर देता हूँ, बेंजीन चेंज हो रहा है इस कार्बोकेटाइन में जो इंटरमीडिएट है। बेंजीन एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, ये नॉन एरोमेटिक है, इसके पास एनर्जी ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है यानी एक्स्ट्रा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। इसके पास एनर्जी लेस है, इसके पास एनर्जी हाई है। तो ये जो एनर्जी गेन रिएक्शन हुआ, गेन ऑफ एनर्जी हो रहा है, इसलिए प्रोसेस कैसा है या कन्वर्जन कैसा है? एंडोथर्मिक है। एंड दिस इज एकम्पनीड बाई
absorption of heat. This is accompanied by absorption of heat. This is accompanied by absorption of heat energy. This is accompanied by absorption of heat energy. So this is about the step 2. Now in third step what happens? मैकेनिज्म का जो थर्ड स्टेप है, उस स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट. स्टेप थर्ड, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट producing toluene as the product. This is first step. And exothermic. So two things are important. Step is flow fast, reaction is exothermic, loss of proton. तो इस स्टेप में तीन चीज होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है और लॉस ऑफ प्रोटॉन बहुत फास्ट होता है, तो स्टेप फास्ट हो गया, एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया. अब देखिए, ये आपका कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो गया, प्रोटॉन यहाँ हो गया, CH3 यहाँ है, और लास्ट करने वाला लेने वाला कौन सा प्रोटॉन को, ये निगेटिव है. ये रिएक्शन फास्ट हो रहा है. देखिए यहाँ पर फास्ट होने का रीजन क्या है? पॉजिटिव चार्ज के बगल में कार्बन है, तो यह अल्फा कार्बन है, और दूसरा इधर देखिए, ये डबल बॉन्ड से लगा हुआ ये कार्बन है, इसलिए एलाइलिक कार्बन है. तो एलाइलिक कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव होता है, जैसे आपको पहले भी मालूम है. और एक्टिविटी कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि इसके बगल में पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए यह ये जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह रिंग को शिफ्ट कर जाता है, और यह जो प्रोटॉन है AlCl3 के द्वारा रिमूव कर लिया जाता है. ये आके इसको रिमूव कर लेता है. तो प्रोटॉन निकल गया. तो प्रोटॉन निकल जाने के बाद जो प्रोडक्ट है, अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बन गया. दिस इज अल्काइलेशन. AlCl3 कैटलिस्ट है प्लस HCl. दिस इज कैटलिस्ट HCl. ये आपका टॉलुएंट प्रोडक्ट बन गया. अब देखिए, एक्सोथर्मिक फास्ट होता है. फास्ट का होने का रीजन भी बता दिया कि यह पॉजिटिव चार्ज के बगल के कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन बोला जाता है, अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है. साथ ही डबल बॉन्ड से सटा हुआ कार्बन है, एलाइलिक कार्बन से लगा हुआ एलाइलिक हाइड्रोजन है, इसलिए इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और ये तुरंत निकल जाता है. AlCl4 इंटरेक्ट करता है, AlCl3 कैटलिस्ट आ जाता है और HCl बन जाता है. अब एक टर्म बताना है, एक्सोथर्मिक क्यों है? तो यह नॉन एरोमेटिक है, जैसा चर्चा मैं कर चुका हूँ. दिस इज नॉन एरोमेटिक स्पीशीज नॉन एरोमेटिक है. मोर एनर्जी है, लेस स्टेबिलिटी है. इसमें देखिए, ये एरोमेटिक सिस्टम है, एरोमेटिक सिस्टम है. इसका अनएरोमेटिक मॉलिक्यूल है. एरोमेटिक में लेस एनर्जी होती है और इसकी स्टेबिलिटी मोर होती है, मोर स्टेबिलिटी है इसकी. तो जो जिस पॉइंट को मुझे बताना है वह एनर्जी का है.
ये मोर एनर्जी वाला सिस्टम लेस एनर्जी के सिस्टम में बदल रहा है। मोर एनर्जी का जो सिस्टम है वह लेस एनर्जी के सिस्टम में बदल रहा है। नेट रिजल्ट क्या होगा? एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। और जब एनर्जी रिलीज हो गई, यह एनर्जी हीट के फॉर्म में है, हैंस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। हैंस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ये यहाँ से प्रोटॉन क्यों फास्ट निकलता है उसका रीजन मैंने बता दिया कि अल्फा कार्बन है, साथ ही साथ एलाइलिक कार्बन है। एलाइलिक कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन है, तो कई फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। रेजोनेंस भी शो करेगा, हाइपर कंजुगेशन भी शो करेगा। अल्फा हाइड्रोजन की वजह से एक्टिविटी बढ़ेगी तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। एक्सोथर्मिक क्यों है ये बता दिया। यह जो है मोर एनर्जी का स्पेसीज है और ये हाई एनर्जी का लेस एनर्जी का प्रोडक्ट है। दोनों के बीच का एनर्जी का डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस हायर से लोअर को माइनस करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी इज रिलीज, हेंस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म। सेकेंड स्टेप है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। इस रिएक्शन का जो स्टेप है, फिशर-क्राफ्ट रिएक्शन का जो स्टेप है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। और यह इंटरमीडिएट किस स्टेप में बनता है? स्टेप सेकेंड में बनता है, क्योंकि वह स्लो है, जैसे ऑलरेडी मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ। तो इस तरह से उसका रिएक्शन संपन्न होता है। अब रीअरेंजमेंट का हम मैकेनिज्म और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कैसे रीअरेंजमेंट होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल, मैकेनिज्म ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये इसी का पार्ट है, फिशर-क्राफ्ट अल्काइलेशन का ही पार्ट है, कैसे रीअरेंजमेंट होता है। तो पहले तो आप जानिए एग्जाम्पल कौन सा हम दें आपको जो सुविधाजनक हो। मान लिया एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ये एग्जाम्पल मैं आपको सबमिट करता हूँ टॉलवेंट पर। एन प्रोपाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा रहा हूँ। एन प्रोपाइल क्लोराइड है, प्रोडक्ट आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन रहा है। AlCl3 एक कैटलिस्ट है, एनहाइड्रस है। कैटलिस्ट AlCl3 है, ये बेंजीन आप देख रहे हैं। प्रोडक्ट जो बनता है वो ऐसा बनता है CH3 CH3। कहीं का हाइड्रोजन हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस HCl बनेगा। AlCl3 कैटलिस्ट के रूप में रहेगा। आपने देखा कि यहाँ पर नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर आइसोप्रोपाइल हो गया, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। इसका नाम ऑलरेडी लिख चुका हूँ, फिर भी लिख देता हूँ, क्यूमीन है। ये रीअरेंज कैसे करता है? तो इसमें इस रिएक्शन में जो इंसिपिएंट कार्बोकेटाइन जनरेट होता है वो देखिए कैसे होता है। जनरेशन पहला स्टेप जो मैकेनिज्म का है, मैकेनिज्म का मैं मैकेनिज्म लिखता हूँ। इसका मैकेनिज्म तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसका स्टेप 1 देखिए। स्टेप 1 रीअरेंजमेंट ऑफ इंसिपिएंट कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल
takes place as। तो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, आपको मालूम है कि वह AlCl3 और अल्काइल हैलाइड के इंटरेक्शन से होता है। यहाँ पर अल्काइल हैलाइड आपका ये है CH2Cl है। ये बॉन्ड स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव होगा। AlCl3 ऐसा मैं कर देता हूँ, एक ही साथ लिख देता हूँ, लेविस एसिड बता चुका हूँ। फिर इसमें जो इंसिपिएंट बनता है वो ऐसा होगा CH3CH2 यहाँ पर डॉट लगाइए, Cl हो गए, यहाँ पर Al करिए, यहाँ पर Cl3 करिए, इसको स्लाइट नेगेटिव करिए, स्लाइट पॉजिटिव करिए। अब ये बीच में Cl है, पूर्व जैसा पिछली बार हुआ वैसा। अब यहाँ रीअरेंजमेंट डिफरेंट है, कैसे रीअरेंज करता है। तो यहाँ का जो 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट होता है, यहाँ का ये शिफ्ट करता है, ये हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया। तो यहाँ का जो हाइड्राइड आयन शिफ्ट करता है 1,2 पोजीशन पर ऐसे, तो लिखेंगे 1,2 शिफ्ट ऑफ हाइड्राइड आयन। क्यों शिफ्ट करता है कि यह जो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का है। अब ये 2 डिग्री में कन्वर्ट होता है, तो CH3 हो गया, और यहाँ पर Cl इसका आ जाएगा। जब यहाँ जाएगा तो Cl इधर मूव करेगा, तो Cl हो गया। Cl ऐसे करिए, AlCl3 कर दीजिए, ये स्लाइड पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर स्लाइड नेगेटिव हो गया। ये 2 डिग्री का इंसिपिएंट कार्बोकेटाइन है, इंसिपिएंट कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल है। अब बेंजीन का जो रिएक्शन होगा, सेकेंड और थर्ड स्टेप ठीक वैसे ही है। अब रिएक्शन जो होगा स्टेप 2 में इस पार्ट से होगा। तो स्टेप 2 का रिएक्शन, स्टेप 2 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन takes place slowly। ये ऐसा स्लोली होगा रिएक्शन। तो देखिए ये रिंग बनेगा, रिंग ऑलरेडी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव, और यहाँ पर CH3 करें, ऐसा डॉट हो जाएगा, डॉट इधर करिए, AlCl3 करिए, स्लाइटली नेगेटिव हो गया, यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव हो गया। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है इंसिपिएंट कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल है, रिएक्शन स्लो होगा। यहाँ पर फिर यहाँ अटैक करेगा, ऐसे ये बाहर चला जाएगा। तो कार्बोकेटाइन बना, रेस्ट चीज़ें इसकी वैसे ही हैं। ये अच्छा आ गया CH3, ये CH3 हो गया, ये कार्बोकेटाइन बन गया, प्लस AlCl4 बना, AlCl4 बन गया। और थर्ड स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। इन थर्ड स्टेप ये सब वैसे ही है जैसे मैं पहले आपको नोट कर दिया था। लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटाइन, फ्रॉम कार्बोकेटाइन। ये आपका कार्बोकेटाइन है, इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ऐसे। अब लास्ट दिखा दीजिए, ये लॉस
यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा CH3, नीचे लिख दिया CH3 होगा ऐसा, और लास्ट किसके द्वारा होगा, AlCl4 माइनस के द्वारा होगा। ये रिएक्शन फास्ट होगा, ऑलरेडी मेंशन ऊपर हम बताया जा चुका है। तो होगा क्या, ये बैक टू पवेलियन होगा, इधर आ जाएगा, ये इसको खींच लेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा ये CH3 CH3 प्लस AlCl3 प्लस HCl, ये बन जाएगा। दिस इज योर प्रोडक्ट। तो रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल का होता है कब, जब ये संभावना रहती है कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री में बदल सकता है, अथवा 2 डिग्री का कार्बोकेटायन 3 डिग्री में बदल सकता है, तब इस तरह का शिफ्ट होकर के रीअरेंज कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होती है और रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। अब एक मॉडिफिकेशन है, अल्काइलेशन का एक मॉडिफाइड फॉर्म भी है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अल्काइलेशन, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अल्काइलेशन। अल्काइलेशन उसमें होता क्या है कि अल्काइल ग्रुप की एंट्री तो होती है लेकिन AlCl3 नहीं होता है। लिख सकते हैं विदाउट AlCl3, विदाउट AlCl3, अल्काइलेशन विदाउट AlCl3, इसको कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अल्काइलेशन, यानी अल्काइलेशन इज बट विदाउट AlCl3। तो उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, एसिड कैटलिस्ट यूज किया जाता है। दिस हैपेंस in presence of non-Lewis acid catalyst such as HF, a non-Lewis acid, H2SO4 etc. And also alkyl halide is replaced by an alkene और एन अल्कोहल। अब देखिए दो चीज़ों को ध्यान में रखना है, जो फिडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन है उसमें बेंजीन लेते ही हैं और दूसरा रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड होता है, इस और कैटलिस्ट के रूप में AlCl3 होता है। नहीं, इसमें क्या है, कैटलिस्ट चेंज हो जाएगा, उसके जगह पर AHF यूज होगा या H2SO4 यूज होगा। अल्काइल हैलाइड भी बदल जाएगा, इसके जगह पर क्या यूज होगा, इसके जगह पर यूज होगा अल्कीन अथवा अल्कोहल यूज होगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर मैं रिपीट करता हूँ। दिस हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ non-Lewis acid catalyst such as HF, H2SO4 and also alkyl halide is replaced by an alkene or an alcohol. For example देखिए, जैसे बेंजीन है, बेंजीन को आपने ले लिया
अल्कीन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 है, HF से रिएक्शन करा दिया। तो ये HF प्रोटोनेशन इसका होता है, कार्बोकेटाइन ही जनरेट होता है। जनरेट तो कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है और ये प्रोडक्ट बनता है CH CH3 CH2 CH3 बनता है। और HF चूँकि कैटलिस्ट है, जैसे कैटलिस्ट, तो इस कैटलिस्ट को हम यहाँ लिख सकते हैं, HF को ऐसे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी था, बाद में भी है। कैटलिस्ट रिएक्शन के पहले भी है और बाद में भी है। ये जो प्रोडक्ट बना, इसका नंबरिंग कैसे करेंगे? इसका नंबर 1 2 3 एंड 4, 2 फेनाइल ब्यूटेन, 2 फेनाइल ब्यूटेन हो गया। कार्बोकेटाइन के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करता है। देखिए कैसे बनता है कार्बोकेटाइन, CH3 CH CH CH3 EH, ये कार्बोकेटाइन देगा, ये कहीं प्रोटोनेट कर देगा, तो ये हम हो जाएगा CH3 CH, ये पॉजिटिव, CH2 CH3। ये आपका अटैकिंग, दिस इज अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। मैकेनिज्म ठीक वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो अल्कीन को लेकर के, यानी ब्यूटीन 2 को लेकर के HF कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या जनरेट किया? कार्बोकेटाइन जनरेट किया। अब इसका बेंजीन पर अटैक होगा। मैकेनिज्म सिमिलर है, मैकेनिज्म उसका सिमिलर, सेम मैकेनिज्म, सिमिलर मैकेनिज्म फॉलो होता है। सिमिलर मैकेनिज्म आप अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सिमिलर मैकेनिज्म इज फॉलोड, ध्यान रखिएगा, सेम मैकेनिज्म होता है, बस जनरेट करना होता है इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा एग्जांपल हम ये दे सकते हैं आपको, अगर हम एसिड को HF को चेंज करके H2SO4 ले लें और अल्कीन को बदल दें, अल्कीन के जगह पर हम अल्कोहल ले लें, तो भी बात वही हो जाएगी। ऐसे ये अल्कोहल ले लिया, H2 CH3 हो गया, ब्यूटेनॉल 2 हो गया, और यहाँ पर कर दिया फ्यू ड्रॉप्स H2SO4 की ला दिया। ये अभी कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा और सेम प्रोडक्ट बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH3, सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट। क्यों सेम प्रोडक्ट बनेगा? क्योंकि कार्बोकेटाइन भी इसमें सेम ही बनेगा, कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल भी सेम है। देखिए वही प्रोटोनेशन होगा, एसिड का प्रोटोनेशन हो करके ये कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। इसको आप अभ्यास कर लीजिएगा, आप जानते भी हैं इसको, यही जनरेट होता है इलेक्ट्रोफाइल, मैकेनिज्म वैसा ही होगा, ऐसा वही प्रोडक्ट बनेगा। अब एक सवाल ऐसा है, कभी कभी साइक्लिक अल्कीन से भी बनाते हैं, समटाइम्स फिडेल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन साइक्लो अल्कीन का यूज़ करके ही बनाते हैं। सवाल आया भी है, जैसे एक एग्जांपल ऐसा बेंजीन है, ऐसे इसका रिएक्शन हो गया साइक्लो अल्कीन पर साइक्लोहेक्सीन पर हो गया, ऐसे यहाँ पर लिख दिया H+ लिख दिया, ऐसे H+ लिख दिया। अब H+ के कारण इस पर क्या बनेगा? H+ होगा तो इसका एक एनायन पार्ट भी होगा, हम HF डायरेक्ट लिख देते हैं, एनायन भी साथ में रहे तो आपको समझने में सुविधा होगी। तो जो प्रोडक्ट बनेगा अब साइक्लो हेक्सीन रिंग आ जाएगी, साइक्लो अल्काइलेशन हो जाएगा ऐसा। साइक्लो हेक्साइल बेंजीन बन जाएगा, साइक्लो हेक्साइल बेंजीन, साइक्लो हेक्साइल बेंजीन बन जाएगा, प्लस HF कैटलिस्ट है रहेगा। हम ट्राई करते हैं कैसे बनता होगा ये। देखिए मैं इसका मैकेनिज्म लिखता आया है, इम्पोर्टेंट है, पिछले साल या इसके पहले आया हुआ है,
नीट की परीक्षा में। ऐसा कर लीजिए। और सबसे पहले तो इसका जनरेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा लंबा हो जा रहा है, ऐसे H+ कर लीजिए, प्रोटोनेशन कीजिए, किसी पर करिए, दोनों कार्बन समान है, ऐसे कर लीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो साइक्लोहेक्साइल केटाइन बन गया, साइक्लोहेक्साइल केटाइन हो गया। दूसरे स्टेप में अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है। देखिए स्टेप 2 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें देखिए कैसे होगा, बेंजीन पर रिएक्शन होगा, ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर अटैक कर जाएगा, रिएक्शन स्लो होगा, ये बनेगा कार्बोकेटाइन, इसको बाहर कर दीजिए, ये ऐसे हो जाएगा। और तीसरे स्टेप में ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। और तीसरा स्टेप में यहीं लिख देता हूँ, स्टेप 3 में लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा। तो लॉस ऑफ प्रोटॉन किसके द्वारा, फ्लोराइड आयन है, इसके द्वारा होगा, ये निकल जाएगा, ये बैक टू पेविलियन हो जाएगा। इसको किसी तरह से बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज योर प्रोडक्ट। तो इस तरह से फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन संपन्न हुआ। और जितने भी इसमें बाधाएं थी, मेन चीज़ ये है कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट है इलेक्ट्रोफाइल है, वह इलेक्ट्रोफाइल डिफरेंट सोर्सेज से आपको बनाने का हमने बता दिया। अल्काइल हैलाइड से बनाने का ढंग बता दिया, एल्कीन से बताने का ढंग बता दिया, अल्कोहल से बताने का ढंग बता दिया। मैकेनिज्म सेम है, पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग है, दूसरा कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन का है, तीसरा है प्रोटॉन के लॉस का है। इस तरह से ये मैकेनिज्म भी मैंने आपको दर्शा दिया। इतना सफिशिएंट कंटेंट होगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।